Hi lovely students, welcome back to Fadafad English with Abhishek sir. Hope you are all good. आप सब अच्छे होंगे. Right, come join the class as soon as possible. My name is Abhishek, an English language trainer, training the people to the tune of spoken English and developing their lives and personalities through spoken English classes. Well, this Facebook class happens at 6:30 every day from Monday to Friday, and in this class we practice some awesome structures, some grammar structures, some vocabulary, and these days we are talking about passive voice. We are learning passive voice, and it has become fun to teach students online. यहाँ लोगों को सिखाकर बहुत मजा आ रहा है. The class has been quite interesting. काफी interesting class चल रही है. And if you miss it by chance, यदि आप इसे मिस कर देते हैं तो of course you can go to Facebook and follow my page. आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए इन द नेम ऑफ फटाफट इंग्लिश. फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर के नाम से सभी जगह, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सभी जगह मेरी आईडीज हैं और वहां जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं. ऑफ कोर्स रिवीजन इज द की टू सक्सेस. रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस. आप जितना ज्यादा बार देखेंगे उतना इंग्लिश आपके दिमाग में फिट होती चली जाएगी. एंड you will be gracefully, मतलब it will be natural to you. आपके लिए वो नेचुरल हो जाएगा अंग्रेजी बोलना. बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश सीखना और इंग्लिश को बोलना आपको बहुत आसान लगने लगेगा. we learn English by listening to the people around us on a regular basis. हम रेगुलर बेसिस पर लोगों को जब सुनते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं. we learn a language bit by bit. We learn a language bit by bit. We develop a language. We acquire a language. Language को हम acquire करते हैं. धीरे 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 हम यहाँ से एक सेंटेंस सुना, यहाँ से एक वर्ड सुना और धीरे 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 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमारे तैयार होते चले जाते हैं. Right? We were talking about passive voice. So I've been great, guys. I've been great. How have you been? आप लोग कैसे हैं? I was down with loose motion in the morning. I was suffering from, I think, diarrhea. I caught some infection and my battery was down in the morning. Right. I slept for almost 4 hours. मैं 4 घंटे सोया from 9:30 to 2:30. 9:30 to 2:30 I slept for 4 hours and then I could feel a bit better. मुझे थोड़ा अच्छा लगा and I was gonna cancel this class. I was going to cancel this class, but the energy has been developed. I have recharged my batteries, and I'm back with the bang again. फिर से मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ. Let's get started. शुरू करते हैं पैसिव वॉइस को. तो हमने 3 स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के सीख लिए हैं, गाइस. Stay tuned with Abhishek sir. Right. I'll take rest and I'll take some treatment also. Household remedies. Household remedies. घर का इलाज करने वाला हूं मैं. I'm not going to depend on allopathy, homeopathy or any Ayurved. I'm going to take some treatment from my kitchen. रसोई घर से कुछ इलाज करने वाला हूं and I think I'll be fine by Monday morning. Monday morning तक सब ठीक हो जाएगा. I want you to write 3 structures that we have already practiced. I want you to write 3 structures that we have already practiced in passive voice. I hope you remember. आपको सब याद होगा. Right, चाय बन रही है. हाँ, right. मोहिनी ने सबसे तेजी से लिखा है. सबसे तेजी से लिखा है. We are gonna learn the 4th structure today. आज हम चौथे स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने वाले हैं. पहले मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि हमने कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर सीख लिए हैं. Right. चाय बन रही है, चाय बन गई है और चाय बननी है. चाय बननी है. You will get well soon, perfectly, right? Tea is being prepared, right? Tea has been prepared, tea is being prepared, and tea is to be prepared. अक्सर हम ऐसा बोलते हैं. ये सब हमारे भाई, मुझे लगता है कि आपने इन सबको सीख लिया. What is to be done, right? क्या होना है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ हलवा बनना है. भाई हलवा बनना है. देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं. हलवा बनना है. टाइप इट फास्ट इन द चैट बॉक्स. जल्दी से टाइप कीजिए इस चैट बॉक्स में.
हलवा बनना है। अरे वाह, क्या बात है। मनी मैम भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हैं। गुड। टी हैज बीन प्रिपेयर्ड, टी इज बीन प्रिपेयर्ड। अब नई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। इसी में जोड़ के कनेक्ट करके तब तक आप टाइप कर दीजिए। आपके मैसेजेस मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हलवा इज टू बी प्रिपेयर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। हलवा इज टू बी प्रिपेयर्ड, हलवा इज टू बी कुक्ड की बजाय प्रिपेयर्ड बोलो यार। कुक्ड चल जाएगा लेकिन प्रिपेयर्ड ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि यदि आप पुडिंग नहीं, पुडिंग नहीं, हलवे का तो मजा ही खराब हो जाएगा यदि आप उसे पुडिंग बोलेंगे। हम उसे पुडिंग नहीं बोलेंगे, हम हलवे को हलवा ही बोलेंगे। आप बोलिए पिज्जा को क्या हम हिंदी में बोलते हैं? बताइए, कभी हम पिज्जा को हिंदी में बोलते हैं? पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हैं। आप चाइनीज में बोलिए, चाहे आप पंजाबी में बोलिए, चाहे आप जर्मन में बोलिए, चाहे आप अमेरिकन इंग्लिश में बोलिए। तो खाने पीने की चीजों के नाम, अब जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अमेरिका में भी मुझे अभिषेक ही कहेंगे। ये एक बदतमीजी है कि लोग नाम बदल देते हैं। खाने पीने की चीजों के नाम नहीं बदलते। रोटी इज कॉल्ड रोटी, उसे आप कह दीजिए चपाती। सब्जी इज कॉल्ड सब्जी, राजमा इज कॉल्ड राजमा, दाल इज कॉल्ड दाल, कलाई पनीर इज कॉल्ड कलाई पनीर, पास्ता इज कॉल्ड पास्ता। तो खाने पीने की चीजों के नाम बदलिएगा नहीं, बदलिएगा नहीं, कभी नहीं बदलिएगा। तो हलवा इज टू बी प्रिपेयर्ड, हलवा बनना है। अब कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि क्या बनना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। तो एक पहले स्ट्रक्चर सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको टाइप करना है व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। ये इन डिनर नहीं होगा मनी मैम, डोसा इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन डिनर नहीं होगा, फॉर डिनर होगा। इसे सीख लीजिए अभी। डोसा इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, राइट। भाई कुछ ना कुछ बढ़िया बनता ही है जनरली, एक टाइम तो कुछ ना कुछ बढ़िया बनता ही है। व्हाट शुड बी डन, एक स्ट्रक्चर सीखेंगे पहले, फिर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। अरे वाह, वेरी ओबीडियंट, वेरी ओबीडियंट। गाइस, यू फॉरगॉट टू हिट द लाइक बटन। आप लोगों ने लाइक बटन भी हिट नहीं किया, मैं आपको रिमाइंड कराना भूल गया। और आपने इस वीडियो को शेयर भी नहीं किया अभी तक। हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट ऑन योर प्रोफाइल so that more and more people join this community. Now there are 2,700 people in the group. अभी 2700 लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है and they're watching videos, they're following, more and more people are following the page, more and more people are subscribing to YouTube channel. And I saw that a lot of people practice there nicely. वहां बहुत सारे लोग, I've shared with more than 10 people. Thank you very much. Thanks for showing your concern. What should be prepared for dinner? What should be done? क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। अब जैसे हमें कहना है यार ये कमरा पेंट होना चाहिए, ये कमरा पेंट होना चाहिए। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो मोहिनी। ये कमरा पेंट होना चाहिए। कौन करेगा हमें इससे मतलब नहीं है भाई, ये कमरा पेंट होना चाहिए। Yes sir, I also shared. Thank you ma'am. This room should be painted. अरे वाह, बहुत ही आसानी से। अब आप देखिए, आप देखिए, जो आप बचपन से बोलते थे, बाई लगाकर जो बोलते थे, वो सारा भ्रम खत्म हो गया है आपका। वो बाई लगा के बोलने की जरूरत ही नहीं। यदि आप बाई लगा के बोल रहे हो तो सीधा एक्टिव वॉइस बोलो ना यार, फिर पैसिव वॉइस की जरूरत ही कहां पड़ती है। पैसिव वॉइस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम हिंदी में कभी नहीं बोलते कि ये काम किया जाना चाहिए उसके द्वारा, हम तो सीधा फिर इसे बोल देते हैं उसे करना चाहिए। इट्स माय प्लेजर। दिस रूम शुड बी पेंटेड होना चाहिए। शिल्पी मैम, दिस रूम शुड बी पेंटेड, दिस रूम शुड बी पेंटेड। करेक्ट, ये रूम पेंट होना चाहिए। अब आपको कहना है, अब दो स्ट्रक्चर भी साथ साथ चलाएंगे, ठीक है। ये रूम पेंट हो जाएगा, ये रूम पेंट हो जाएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें कहना चाहिए दिस रूम विल बी पेंटेड। सर 12th तक सिखाया गया था, जिसमें बाई आएगा वही पैसिव वॉइस होता है। दैट्स राइट। आई एग्री विद यू। ऐसा ही हमने भी सीखा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया थोड़ी अपनी समझ डेवलप की और फिर इसको समझा कि जहां एक्टिव वॉइस है
वहां पैसिव की कभी जरूरत नहीं है, और जहां पैसिव वॉइस है वहां एक्टिव से काम नहीं चलेगा। What will be painted? अब जैसे घर में बात हो रही है, गुड गुड गुड, दिस रूम विल बी पेंटेड, वेल डन वेल डन। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और सीखते रहिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, मन लगा करके देखिए और आपको ये 2 नए स्ट्रक्चर आ जाएंगे पक्का। अब यदि हमें पूछें भाई जैसे शाम है, शाम का समय है और बैठ के परिवार में बात हो रही है, क्या बनना चाहिए भाई आज? क्या बनना चाहिए आज? क्या बनना चाहिए भाई? ऑफ कोर्स खाने की ही बात हो रही है। ऑफ कोर्स भाई, हमारे सबसे ज्यादा घरों में बात किस चीज की होती है? खाना बनाने की ही बात होती है। दोपहर में क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, यही बात हमारे घरों में, परिवारों में सबसे ज्यादा होती है। जी, क्या बनना चाहिए आज? What should be prepared today? Right, correct. What should be prepared today? What should be prepared today? क्या बनना चाहिए भाई? करेक्ट, आप सभी लोगों ने इसे सीख लिया है। What should be prepared today? तो आज क्या बनना चाहिए? अब हम करें, भरता बनना चाहिए, भरता। भरता बनना चाहिए, भरता। तो ये भुरता नहीं होता, भरता बोलते हैं इसको। एक पंजाबी डिश है बैंगन का भरता। हालांकि आजकल तो लोगों का भी भरता बना देते हैं लोग, मैं तेरा मारते मारते भरता बना दूंगा। जैसे बैंगन को अपने जो है भून भान के सब बिल्कुल उसे बिल्कुल ऐसे मुलायम मुलायम कर दिया जाता है, ऐसे ही शायद इंसान को मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। भरता बनना चाहिए, भरता। Yes, bharta should be prepared. Correct. Correct. Bharta should be prepared. Gobi, aloo and lauki will be prepared. ये आगे आगे ये खेल बिगाड़ देती है मैडम, ये आगे आगे बोलती हैं। गोबी, आलू एंड लौकी विल बी प्रिपेयर्ड। राइट, अब मुझे मालूम ही नहीं है यार, मैं तो अपने घर में फोन करके पूछूंगा, हाँ भाई क्या बनेगा आज? व्हाट विल बी प्रिपेयर्ड? तो बताएगी जी ये बनेगा आज। अच्छा, यदि आपको पूछना पड़ जाए आज क्या बना था दोपहर में, आज दोपहर में क्या बना था, तो मैं भाई जैसे मैं घर से बाहर जाता हूं कई बार और मैं शाम को लौट के आता हूं, तो उसने कहा मैंने भुर्ता बनाया, तो मैं उससे पूछता हूं दोपहर में क्या बना था। इसको एक सेंटेंस अभी सीख लो, बाद में सीखेंगे पैसिव वॉइस जी कैसे बना है। व्हाट वाज प्रिपेयर्ड इन द नून? व्हाट वाज प्रिपेयर्ड इन द नून? नून में क्या बना था? लस्सी शुड बी प्रिपेयर्ड। मैंगो शेक। अरे लस्सी खाने में थोड़ी खाएगा, डिनर में लस्सी थोड़ी खाएगा, ये तो लस्सी तो उसके बाद का है, बेवरेज, डेजर्ट की जगह पे, डेजर्ट की जगह पे। पास्ता विल बी प्रिपेयर्ड। Pasta will be prepared. What was prepared in the noon? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। What नहीं, ये क्या गलत कर दिया मैडम आपने? What was prepared in the noon? गलत कर दिया, और शाही पेल दी अपनी। What was prepared in the noon? क्या बना था नून में भाई? ना गलत कर दिया, ये मनीषा मैम ने भी गलत कर दिया, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं लोग। I'm crazy about taking lassi. I daily take lassi in the evening. That's wonderful. Lassi waters my mouth. What was to be prepared in the noon? हे भगवान, अरे कानपुर में दिक्कत है क्या? सही से सुनो भाई। What was prepared in the noon? गोलगप्पे was prepared in the noon. अच्छा जी, गोलगप्पे बना दिए दोपहर में, कमाल ही कर दिया, बड़े चटोरे लोग हैं। Right, गोलगप्पे was prepared in the noon. What was prepared in the noon? मैं आज बताऊं आज आपको, लौकी was, because I was unwell, so लौकी was prepared. I was suffering। अच्छा, बहुत was prepared in the, बहुत चटोरे हैं, क्या बात है। Right, everybody is, सब हैं चटोरे, हम भी चटोरे हैं, आप भी चटोरे हैं। मुझे तो लगता है हर इंसान धरती पे पैदा होने वाला चटोरा है। क्या कहते हो आप? Do you agree with me? अरहर दाल एंड चावल was prepared in the noon. I hate लौकी,
ना मेरा कुछ ऐसा है नहीं। मैं आई हेट लॉकी, आई हेट पुष्पा, आई हेट टीयर्स पुष्पा, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। आई डोंट माइंड इट, मैं खा लेता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ। आई डोंट लाइक लॉकी वेरी मच, बट आई डोंट माइंड इट। Dal chawal was prepared in the noon. I hate Laki. Totally agree. Right. Right. So I also don't like Laki very much. I don't like Laki a lot. मुझे लौकी बहुत अच्छी नहीं लगती, बट आई डोंट माइंड इट, मैं खा लेता हूँ। आई डोंट माइंड टेकिंग लौकी। ठीक है, चल भाई, एक दिन लौकी भी सही, एक दिन टिंडा भी सही। अब हर रोज पिज्जा थोड़ी खाओगे आप, इसका भी तो कुछ ध्यान रखोगे। ये जो आइटम है, ये हमारा जो एरिया है, या सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुए हो। बट समटाइम्स आई हैव टू टेक लौकी व्हेन माय मदर फोर्सेस मी। नोबडी हैज टू फोर्स मी। छोले चावल वाज प्रिपेयर्ड इन द नून। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे यहाँ तो लौकी वाज प्रिपेयर्ड इन द नून। हाँ, फॉर ब्रेकफास्ट। अब यदि हम पूछें व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, चलो ये सवाल सीखो। What was prepared for breakfast today? क्या बना था आज? You managed somehow. Right. कुछ लोग यहाँ बहुत आनंद लेते हैं, कुछ लोग बहुत मजा लेते हैं। वो जो है सारा दिन भर की जो खुजली है वो यहाँ पे इस लाइव क्लास में मिटा लेते हैं। वाओ, प्राउड ऑफ यू गाइस। होना भी चाहिए, मस्ती करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई मजे की चीज है। किसने कह दिया बोरिंग होना चाहिए? Should not be boring. The education or study should not be boring, rather it should be interesting. What was prepared for breakfast today? क्या बना था आज ब्रेकफास्ट में? चलो टाइप करो। ये सब आपको जनरल लाइफ में यार आपको बोलना पड़ता है। रोज बोलते हो आप ये सारे सेंटेंसेस, लेकिन किसी ने नहीं समझाया कि पैसिव वॉइस हमारी रोजाना लाइफ में काम आती है। किसी ने नहीं समझाया। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जो 50% लैंग्वेज बोलते हो दिन भर में, उसमें ज्यादातर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के होते हैं। आप देखिए ना कैसे काम में आ रहा है। अभी जब ये सारा राज खुलेगा, जब किसी दिन खुलेगा, सारी पैसिव वॉइस जब आप 3-4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 हफ्ते में सीख जाओगे, तब इसको सबको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि दिन भर में आप कितने सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के बोलते हो। आपको आइडिया ही नहीं था। मुझे ये बताइए जरा कि आप ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ भाई, नाश्ते में क्या बना था? बोलते हो कि नहीं बोलते हो हिंदी में? अरे आज लंच में क्या बना था? बताओ। स्टडी शुड बी प्रैक्टिकल होना चाहिए दोस्त। आपका सेंटेंस गलत हो गया। व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज ब्रेकफास्ट? व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ऐसे कहना होगा मैम। चीज सैंडविचेस वर प्रिपेयर्ड। यस सर, बोलते हैं। गुड। वाज प्रिपेयर्ड इन द ब्रेकफास्ट नहीं होगा शिल्पी, तो ध्यान से सुनो भैया। फॉर होगा, फॉर। तो व्हाट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? क्या बना था ब्रेकफास्ट में? भाई मेरे यहां तो इडली वाज प्रिपेयर्ड। इडली वाज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। And I was unwell, so shikanji was prepared. शिकंजी को आप इंग्लिश में लेमोनेड कहते हैं, बट आई वुड कॉल इट शिकंजी। तो सैंडविच को हिंदी में भी सैंडविच ही कहते हैं और इंग्लिश में भी सैंडविच ही कहते हैं। तो शिकंजी को आप शिकंजी कह सकते हैं इंग्लिश में। शिकंजी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर मी, नॉट फॉर एवरीवन इन द फैमिली, जस्ट फॉर मी, बिकॉज आई वॉज डाउन विथ लूज मोशन एंड वॉमिटिंग। खिचड़ी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। ग्रेट 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 ग्रेट। अब मैं आपसे पूछने लगूं, क्या हुआ था यहाँ पे भाई स्कूल में? व्हाट वाज डन इन द स्कूल? आज क्या हुआ था स्कूल में? व्हाट वाज डन इन द स्कूल? व्हाट वाज डन इन द स्कूल? गुड। एंड इडली वाज डैम टेस्टी। माय वाइफ इज अ ग्रेट कुक। आई टोल्ड यू प्रीवियसली, मैंने बताया था। इडली वाज डैम डिलीशियस। आई डिड नॉट वांट टू, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आई फिनिश्ड all the idlis. What was done in the school? Dalia was prepared for breakfast today. Tori aloo and mango shake. Shweta Gupta. ये कौन है श्वेता गुप्ता? श्वेता गुप्ता जी, you are attending this live English speaking class for the
फर्स्ट टाइम, वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू, डू वी नो ईच अदर समहाउ, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, कहां से हैं आप, आए हैं तो मुलाकात कीजिए। राइट, तोरी आलू एंड मैंगो शेक वॉज प्रिपेयर्ड इन द नून। राइट, तोरी आलू एंड मैंगो शेक, ये बात समझ में नहीं, तोरी के साथ आलू कौन खाता है, या तोरी अलग थी आलू अलग था। शी इज माई फ्रेंड, ओके ओके, शी इज योर फ्रेंड, दैट्स वंडरफुल मैम। प्रथम कुमार, अरे वाह, व्हाट वाज डन इन द स्कूल। राइट, अब यदि आप कहने लगे प्रथम कुमार भी आ गए हैं, ग्रेट ग्रेट, शी लिव्स इन एमबीडी, ग्रेट great. You can join this class at 6:30 every day, guys. It goes on up to 7, and it is held from Monday to Friday. It will be off for Saturday, Sunday. So what was done in the school? अब मैं इनसे पूछूं, बच्चे पीटे गए आज, बच्चे पीटे गए आज, तो मेरा ये सवाल है कि क्या बच्चे पीटे गए आज। तो ये सवाल कैसे कहेंगे, ये ऐसे ही जनरल सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि हम इसमें ग्रामर के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम तो जनरल लैंग्वेज में ऐसे बोलते बच्चे पीटे गए, हम ऐसे नहीं बोलते हिंदी में, क्या बच्चे पीटे गए। ओके, तोरी अलग एंड सूखे आलू अलग, दैट्स वंडरफुल मैम, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। राइट, क्वाइट इंटेलिजेंट, आफ्टर ऑल यू आर अ फ्रेंड ऑफ मनी मैम। राइट, तो बच्चे पीटे गए, चिल्ड्रन वर बीटन। अब इसी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसी में क्वेश्चन मार्क। भाई ग्रामर के हिसाब से देखें तो बनेगा, यदि हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो फिर ये बनेगा वर चिल्ड्रन बीटन, वर स्टूडेंट्स बीटन। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते यार, हम वर को शुरू में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम हिंदी में भी क्या को शुरू में नहीं लगाते, हम ऐसे ही बोलते हैं बच्चे पीटे गए आज, क्या बच्चे पीटे गए नहीं बोलते हम। तो चिल्ड्रन वर बीटन के बाद जब आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, और जब बोलेंगे तो सब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगेगा, चिल्ड्रन वर बीटन, चिल्ड्रन वर बीटन। और यदि आप बता रहे हो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप देखो कैसे बोलोगे, चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, चिल्ड्रन वर बीटन। सवाल पूछ रहे हो, चिल्ड्रन वर बीटन, नहीं, चिल्ड्रन वर नॉट बीटन आप कहेंगे, चिल्ड्रन वर नॉट बीटन, बच्चे पीटे नहीं गए सर, बच्चे पढ़ाए गए, बच्चे पढ़ाए गए। अब देखो कैसे बोलेंगे, बच्चे पढ़ाए गए। भाई पैसिव वॉइस में तो हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आती है एक्शन का, तो चिल्ड्रन वर बीटन, राइट, आपको बात समझ आ गई, गट गट। चिल्ड्रन वर नॉट बीटन, उन्हें पढ़ाया गया था, बोलिए कैसे बताएंगे, चिल्ड्रन वर नॉट बीटन, करेक्ट, चिल्ड्रन वर टॉट, अरे वाह क्या बात है, चिल्ड्रन वर नॉट बीटन, बच्चे पीटे नहीं गए, चिल्ड्रन वर टॉट, बच्चे पढ़ाए गए थे, बच्चे पढ़ाए गए थे। ये पैसिव वॉइस है, और धीरे धीरे हम इसको सीख लेंगे, अभी नहीं, मैं तो आज ये बातचीत करते करते बीच में आ गया तो हम इसको बात कर रहे हैं, नहीं तो आज हमारा इसका टॉपिक नहीं था। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। तो बच्चे पिटने चाहिए कि नहीं, बच्चे पीटे जाने चाहिए स्कूल में, नहीं, चिल्ड्रन शुड बी बीटन और चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन। गुड, बताओ, चिल्ड्रन वर टॉट, ओके गुड, impressed. Pratham Kumar, you can join this class whenever you are available. Children were not beaten, children were taught. Correct. Not at all, not at all. Children should not be beaten. बच्चे नहीं पीटे जाने चाहिए, क्या लगता है, बच्चे नहीं पीटे जाने चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन। मुझे लगता है चिल्ड्रन शुड बी बीटन, बच्चे पीटे जाने चाहिए, क्या कहते हैं आप, व्हाट डू यू से, चिल्ड्रन शुड बी बीटन और चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन, शुड नॉट बी बीटन, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन, बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, चिल्ड्रन वर बीटन, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन, बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन। आप देखिए मैंने कैसे सेंटेंस बोला, पीटने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, मुझे लगता तुम तो बिना पीटे भी जिद्दी हो गए हो।
तुम तो बिना पिटे भी जिद्दी हो गए हो। चिल्ड्रन शुड बी डन, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन? बच्चों को क्या किया जाना चाहिए? बच्चों को क्या क्या तुम्हारे रवि शर्मा को पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। वो इतनी दिनों से क्लास मिस कर रहे हैं, कहां चले गए वो? ही इज गॉन टू दिल्ली अगेन? वेयर हैज ही बीन? व्हाट शुड बी डन? अब मोहिनी ध्यान से नहीं सुनती है। मैंने यहां पे बोला व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन, ये विद कहां से आ गया? सही से सुनो यार। व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन, ये यदि आप एक एक सेंटेंस में एक एक शब्द गलत कर दोगे, प्रपोजिशंस गलत कर दोगे, कनेक्शंस गलत कर दोगे, तो फिर मजा नहीं आएगा भाई। वही सीखो जो मैं सिखा रहा हूं। आप अपनी मर्जी से सेंटेंस मत बनाओ। मैंने बोला कुछ और आपने टाइप कर दिया कुछ और। व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन, जब बात व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए, बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी टॉट, शुड बी ना, ये टॉट तो सही है। चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, प्लेड सही नहीं है, प्ले सही नहीं है। रवि सर जॉब टाइमिंग हैज बीन चेंज सो ही इज अनेबल टू ज्वाइन द क्लासेस। चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, राइट। व्हाट शुड बी डन टू द चिल्ड्रन? चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। चलो, इस बच्चों को स्कूल में तो ये प्यार किया जाना चाहिए, घर में मारे जाने चाहिए, घर में पिटाई होनी चाहिए उनकी, थप्पड़ थप्पड़ लात घूंसे, और बच्चों को कभी नहीं पीटा जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड एंड टॉट। वेरी गुड। चिल्ड्रन शुड बी लव्ड एंड टॉट, राइट। और ये जो घर की महिलाएं होती हैं, इनको क्या किया जाना चाहिए? They should be loved, they should be beaten। बताओ ना, आप बताओ। मैं कोई नहीं बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन दे आर स्कोल्डेड, उनको डांट तो पड़ती है। दे शुड बी स्कोल्डेड। औरतों को या लेडीज को डांट पड़नी चाहिए कि नहीं? दे शुड नॉट बी स्कोल्डेड, दे शुड नॉट बी स्कोल्डेड। डांट नहीं पड़नी चाहिए उनको, उन्हें तो सीधा मारा जाना चाहिए। One slap of mother works wonders. Okay, of course, loved. वाह, क्या बात है। अब कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग हो चुका है। Children should be allowed to use mobile. They should be stopped to do the backbiting. They should be loved and respected. अरे अरे देवी जी, they should be loved and respected. ना ना, महिलाओं को रेस्पेक्ट तो किया ही जाना चाहिए। They should be loved and respected. दे शुड नॉट बी स्कोल्डेड, डांटा नहीं जाना चाहिए। आप बताओ, घर की महिलाओं को डांटा नहीं जाना चाहिए, लेडीज को डांटा नहीं जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्कोल्डेड। अरे वाह, डांटा ही नहीं जाना चाहिए, सीधा मारा जाना चाहिए, थप्पड़ मारो। सुन नहीं रही है ये? राइट। नो नो, दे कैन नॉट बी बीटन। मारा तो जा ही नहीं सकता। घर से बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें, फिर घर में वो करेगी तुम्हारे साथ। दे शुड बी अंडरस्टूड, दे शुड बी अंडरस्टूड विद लव। उनको समझाया जाना चाहिए, प्यार से समझती कहां है वो? मेरी वाली तो चढ़ जाएगी मेरे ऊपर ही, वो तो उल्टा मेरी गलती निकाल के खत्म करेगी। अरे तुम्हें कुछ ना पता है, तुम्हें अकल ना है, तुम तो ऐसे ही पागल बना देते हैं तुम्हारा लोग। वो मुझसे ऐसी बात करती है। हाँ हाँ, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूं, सब पागल बनाते हैं तुम्हारा। दे शुड नॉट बी पुक्ड देयर नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। दे शुड बी स्कोल्डेड बट वेरी पोलाइटली। जी, आपको मालूम ही कहाँ है? दे शुड बी लव्ड एंड समटाइम्स स्कोल्डेड। ये बात, ये शिल्पी लड़की ठीक है, ये ईमानदार है। दे शुड बी स्कोल्डेड समटाइम्स। उनको महिलाओं को डांट वांट तो पड़नी ही चाहिए। दे शुड बी स्कोल्डेड पोलाइटली, डांट तो पड़नी ही चाहिए। जी, दे कैन नॉट बी बीटन। मारा तो नहीं जा सकता भाई, मारा नहीं जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी बीटन। सम पीपल बीट देयर
wives and daughters. No, they cannot be beaten or they should not be beaten. मारा तो जा ही नहीं सकता. आप घर में रहना चाहते हो कि कहाँ कहाँ रहना चाहते हो? They should not be scolded. नहीं, मैं नहीं, I don't agree. डांट तो पड़नी चाहिए यदि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी है. They should be scolded. क्यों? Men are scolded only. Man should be scolded. आदमियों को डांटा जाना चाहिए, औरतों को नहीं. वाह भाई वाह, केस हो जाएगा. केस हो जाएगा. आज तो मजा ही आ गया. अब हाउस वाइफ से बात कर रहा हूं तो ये तो करना ही, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. इफ दे शुड बी बीटन, इफ दे आर बीटन, ये हम बाद में सीखेंगे. मैम आपका सेंटेंस ये गलत हो गया. दे कैन नॉट बी बीटन. नहीं, पीटा तो नहीं जा सकता और पीटा जाना भी नहीं चाहिए. दे कैन बी स्कोल्डेड समटाइम्स. They should be scolded politely. They should be scolded politely. बहुत प्यार से डांटना चाहिए, क्योंकि आपने गुस्से पे डांट दिया तो फिर आपको बर्दाश्त कैसे करोगे आप फिर बाद में? फिर वो तुम्हारा रॉकेट बनाएगी. हाँ, मुझे मालूम है. बाद में पछताना अभी को पड़ेगा जब वो मुंह बनाए पड़ी होगी. They should not be talked ill about others' wives. ना, ये सेंटेंस ही गलत है देव भैया जी. ये आप अपनी मर्जी के सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, नहीं तो आप गलत कर देंगे. तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. सो गाइज, इट्स मोर देन 7 o'clock नाउ. आई हैव टू टेक माई लीव. नाउ वी विल ज्वाइन दिस क्लास ऑन मंडे. मंडे से फ्राइडे चलती है. नेक्स्ट वीक आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी हॉलीडेज. इस वीक में तो 3 हॉलीडेज रहा, तो मुश्किल रहा, थोड़ा कम रहा, क्लासेस आपने कम सीखी. But we will be discussing passive voice sentences to be used in daily life. जो sentences passive voice के daily life में use होते हैं उनको हम यहाँ practice करते रहेंगे जब तक कि हम passive voice को पूरा नहीं सीख लेंगे. बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में. And if you have missed the classes, you can of course join us on YouTube. फटाफट English with Abhishek sir, and watch the previous videos जो आपने मिस कर दी हैं. उनको सारी वीडियोस YouTube पर हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं. सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल टेक सम टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई विल बी बैक विद द बैंक. बाय गाइस.